Hi students, welcome to Byju's exam prep. So as we all know, 17th September is the date. Exam is about to take place. Lot of anxiety, lot of questions, preparations, everything is going on. And in ongoing of all this, we have lot of queries, doubts, questions, dilemmas. It's full of it. So to calm down that, to have questions, answers to all your solutions and everything, we have a very special guest amongst us. Let's welcome Kajal Jain. She has bagged an AIR of 96 in 98, sorry, for a CSIR NET June 2020 Life Sciences. So welcome Kajal. Thank you so much, ma'am, for having me here. First of all, I would like to thank you for inviting me here. And thank you so much for recognizing me for this particular thing. I thank you. Great. When we see people like Kajal, we really feel that, पढ़ने के बाद भी ma'am, people can look so beautiful because we have this, ongoing image. जो पढ़ता है उसके तो बड़े-बड़े glasses होते हैं. So it really feels, happy to see this, Kajal. So, Kajal, could you just tell us something about your educational background, your journey, anything? Yeah, sure. So, first of all, talking about my educational background, see, मैंने BSc जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, as normal students do. Then I thought of कि चलो B.Ed करते हैं. फिर मैंने B.Ed complete किया from IP University. After that, I thought कि चलो अब masters भी कर लेते हैं क्योंकि we need to like move ahead. So I did my masters from Jamia Hamdard University. Along with that, I qualified my examination, and now I am a PhD scholar in Jamia Hamdard itself. Great. So such a wild pick during the entire journey. I guess this talent is with females only. They always pick the right thing and the best thing. So when did exactly your journey started for your CSIR NET June 2020, Kajal? Okay. See, मैंने कभी पहले प्लान नहीं किया था दैट आई वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. मेरा पहले कुछ और एम था, बट देन आई थॉट जब लॉकडाउन का टाइम था लाइक जून 2020 का जो एग्ज़ाम आने वाला था, आई थॉट कि चलो मार्च में अभी फ्री भी है, एक बार एग्ज़ाम को ट्राई आउट करके देखते हैं. सो मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा एंड देन आई थॉट कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. अभी बहुत टाइम है, घर पे ही रहना है सबको, व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट टाइम. सो मैंने 6 to 7 months लिए एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम. But like this COVID condition, was very much, I would be saying, demotivating and heartbreaking as well. Yeah. So was it like any sort of hurdle as well to your, or was just a source of inspiration? See, it was both way round. It was a source of inspiration as well, and it was a bit of hurdle as well. Why? Because you cannot go to markets and purchase books or whatever it is. You cannot go out and have the sources for yourself. So मुझे लगा कि why not take this thing as an opportunity. What I did was that मैंने सारा YouTube सर्फ आउट किया कि जो टॉपर्स हैं वो प्रेपरेशन किस तरीके से करते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट. सो पहले मैंने सारे यूट्यूबर्स जितने भी थे, सबको बहुत टाइम था, बहुत खाली बैठे थे, मैंने अच्छे से सर्फ आउट किया. आई थॉट ऑफ पहले मैं स्ट्रैटेजी बनाती हूँ एंड देन आई जंप इनटू द प्रेपरेशन. सो यूट्यूब, बायजून्स को भी सेम, बहुत सारे इंटरव्यूज थे, मैंने उन्हें सर्च आउट किया, उनको बहुत सबको रीड किया एंड देन आई मेड माई ओन स्ट्रैटेजी एंड देन आई मूव फॉरवर्ड विद दिस. Great. That's a wonderful journey, students, isn't it? Your side, if I might talk about a complete package of efforts. सी, फर्स्ट थिंग जो हमें इस प्रेपरेशन में याद रखनी है दैट इज रिगार्डिंग दी स्ट्रैटेजी, एंड इन दैट स्ट्रैटेजी बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन दैट. कि अगर आप कुछ स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रहे हो, लाइक अगर आपको है कि मेरे पास 6 months है, सो उस 6 months को पहले अच्छे से प्लान आउट करो एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट. आपको बहुत सारे डीमोटिवेटिंग टाइम्स आएंगे जब कोई यूनिट समझ नहीं आ रही, सोर्सेज नहीं मिल रहे, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल रहे. सो इन दैट केस बी वेरी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट अबाउट दैट थिंग एंड देन मूव अहेड. सो कंसिस्टेंसी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रेपरेशन. Okay. But Kajal, I feel students, you might be having this question and this thing of self-belief. I really feel so, Kajal. एक होता है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं, but still you don't get that feeling कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So what was your agenda for that? How did you tackle that?
सी फर्स्ट थिंग वॉज कि अगर आपको कोई एग्जाम प्रिपेयर करना है सो उसके लिए हैव दैट कॉन्फिडेंस फर्स्ट थिंग, एंड इन दैट कॉन्फिडेंस एज वेल हैव दैट थिंग कि आपको वो चीज़ करनी क्यों है. लाइक मेरा एजेंडा था कि मुझे टीचिंग में जाना है, एंड सेकेंड थिंग वॉज कि मुझे PhD भी परस्यू करनी है. सो 6 months का गैप था जिसमें कोई बाहर नहीं जाएगा और सबको ऑल मतलब घर पर ही रहना है. सो इन दैट थिंग बेस्ट थिंग वॉज कि स्ट्रैटेजी बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्जाम को क्वालिफाई करो विद दैट थिंग कि क्यों कंप्लीट करना है आपको वो चीज़. Great. Students, I hope you are very well connecting with Kajal because she has been through this journey जो आप अभी जा रहे हैं. So she is actually going through that. So Kajal, आप मुझे ये बताएंगी कि अब जब आप एक ऐसा कोई रैंक ले लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारी अदर कमिटमेंट्स आते हैं, राइट? कि जैसे कि अब आपका ये रैंक आ गया है, सो विच करियर ऑप्शन और हाउ वुड रियली लाइक टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? सो उसके बारे में प्लीज एनलाइटन आवर स्टूडेंट्स के आपने क्या किया उसमें फिर. श्योर. सी अगर हम कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं सो उसके बाद वी नीड टू थिंक अबाउट कि अच्छा एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर दिया, अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं. लाइक CSIR को क्वालिफाई करके फर्स्ट थिंग इज़ गेट इनटू PhD. अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, इफ़ यू फील लाइक दैट रिसर्च इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, गो अहेड डू रिसर्च. अगर आपको रिसर्च में नहीं जाना, लाइक सम स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट फ्रॉम PhD इन द मिडल एज वेल, सो उस केस में यू कैन गो फॉर टीचिंग्स, यू कैन गो फॉर एनी अदर. लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट्स में जाना है, बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स निकालते हैं. सो गो अहेड इन दैट एंड देन परस्यू द सेम थिंग. So what one thing I can sense, Kajal, is that you have a passion of studying, right? And you have a passion of teaching as well. Sure. Because मैंने ये चीज़ usually अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स देखी है कि जितने लोग जितनी पैशन से पढ़ते हैं they have this thing to deliver it as well. Because एक saying होती ना कि an intelligent person is the one who delivers it to the most and the maximum people, and not to contain it. हालांकि आजकल के बच्चे बिल्कुल उल्टा चलते हैं, but let's hope they get inspired by this and doing so. So Kajal, owing to that property of yours, we came to know that you have your own YT channel, Students Botany Insider, and so वहां पर आपने अपने इस पैशन को कैसे चैनलाइज करा? ओके, सी मेरा बॉटनी इनसाइडर को स्टार्ट करने का मेन पर्पस था दैट आई वांट टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट टू माय स्टूडेंट्स. अगर मैंने कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो द स्टूडेंट्स ऑल्सो शुड गेट दैट पर्टिकुलर इंस्पिरेशन कि ये एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है. यू ऑल्सो मस्ट बी नोइंग कि इस वक्त यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कंटेंट नहीं अवेलेबल है. लाइक यू कैन नॉट फाइंड एवरीथिंग देयर. So I wanted to like make a platform which is unique, first thing. Second thing, which delivers the best quality content, irrespective of the fact कि वो काम कैसे होगा, because I am a full-time PhD scholar as well. So मुझे लगा नहीं, ये चैलेंज है, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो ये भी कर लेंगे. So I thought कि अगर मुझे YouTube को अपना पैशन, जिसको जो मतलब मेन इज टीचिंग, सो अगर मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है और स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिलीवर करना है, सो बेस्ट थिंग इज स्टार्ट अ यूट्यूब channel, be consistent in that, and then move ahead. Great. Students, you can find the description as well as in the link given, and you can have a glimpse in over there. So, Kajal, how does it really feel? जैसे अभी आपने बताया, you updated us कि you are enrolled in PhD as well, right? So, being a teacher and the student at the same time, तो balance करने में कोई effort लगता है, or it really makes you easy to understand the story of both the sides? See, from my end, first thing is कि it is very exciting because I am a student and I am a teacher as well. So मैं दोनों positions पे हूँ. मुझे पता है कि student की need क्या है. मुझे पता है कि teacher को क्या देना है students को ताकि student की need fulfill हो. So best thing is कि अगर हम दोनों positions पे होते हैं, it might be like tiring for some. होता है, नॉट एवरी वन इज एबल टू डू दैट. मुझे भी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं समटाइम्स, बट इट्स ओके. जब मैं स्टूडेंट होती हूँ तो हम अपने गाइड की सुनते हैं, जब हम टीचर होते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स की सुनते हैं. सो इट्स बोथ वे राउंड. दैट्स रियली ऑसम. आई फील स्टूडेंट्स के दोनों तरफ इतना अच्छे से बैलेंस करना, इट इज समथिंग अ पर्सन लाइक हर कैन मैनेज, राइट? सो Kajal, like you said, coming back to your own point, के when you were all alone in that COVID session, you know, and you were surfing around, and आपने बहुत
सारे चैनल्स एंड सब कुछ देखा. सो वाज देयर अ टाइम व्हेन यू केम अक्रॉस बायजूस एग्जाम प्रेप? या श्योर, फॉर श्योर. जब मैंने आपको पता है लाइक बायजूस इज समथिंग जो हर एक फील्ड के अंदर यू कैन गेट सम क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम देयर. एंड क्वालिटी कंटेंट आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ एनीथिंग, मैंने वो चीज़ यूज़ की है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो क्वालिटी कंटेंट है अवेलेबल वहाँ पर. सो यू कैन फाइंड इट वाया गूगल एज वेल. आपको मान लो आपको कोई टॉपिक सर्च आउट करना है, सो उस टॉपिक को जस्ट राइट इट डाउन ऑन गूगल एंड देन जस्ट राइट बायजूस ओवर देयर. यू विल बी फॉर श्योर एबल टू गेट समथिंग और द अदर. सो वो आपको शॉर्ट नोट्स में हेल्प करेगा. अगर आपको किसी का इंटरव्यू सर्च आउट करना है, सो जस्ट सर्च इट ऑन यूट्यूब. आपको बायजूस का फॉर श्योर कहीं ना कहीं इंटरव्यू दिखाई देगा. सो सी, एवरी इंटरव्यू वुड गिव यू अ न्यू थिंग in your strategy, but make sure whenever you strategize your preparation, make sure that it is your own preparation. मतलब वो आपकी खुद की strategy होनी चाहिए, आपको किसी की copy paste नहीं करनी. वो बोलते हैं ना कि 100 लोगों की सुनो लेकिन अपने according काम करो. That is very very important. That is the best thing I would be saying, said by her. The मूल मंत्र I would be saying. हाँ, but teacher की अच्छी बात जरूर सुनिए, प्लीज उसको purify मत करिए. So काजल, जैसे कि अभी हम सबको पता है कि just few days are left, say 6 or 5 days, right? And सब बच्चे बहुत ज्यादा tense हैं. लास्ट मोमेंट पे परफॉर्मेंस एंजाइटी एंड होगा नहीं होगा. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? आपकी मेरा पहला क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे रहेगा, आप अपने लेवल पे उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सी, जब मैं इस लास्ट फेज में थी, बिकॉज वो तो कोविड टाइम था, वो तो इससे भी ज़्यादा एंजाइटी वाला टाइम था. सो जो लास्ट टाइम होता है ना, वो टाइम आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा कि आपको फाइनली कैसे एग्जाम में डिलीवर करना है. दीज लास्ट फ्यू डेज, टुडे इज 11th आई गेस, सो एग्जाम 17th को है लाइफ साइंसेस का. सो इन 7 days के अंदर फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बी वेरी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट. आपने जितनी पढ़ाई करनी थी आप सब कर चुके हो. अब आपको सिर्फ उसको सम अप करना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से रिवीजन करना है, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आप एग्जाम में मार्क तो कर पाओ. मतलब 100 टॉपिक्स पढ़ने का मतलब नहीं है कि एग्जाम में कितना होगा. Exactly. लेकिन पॉइंट इज कि वो 100 टॉपिक्स अगर आप 20 बार रिवाइज करोगे, दैट इज समथिंग दैट वुड चेंज द मेन रिजल्ट ऑफ योर्स. ओके. एंड काजल, ये जो एक सबसे बड़ा बच्चों को डायलेमा होता होगा, आई एम श्योर एंड यू हैव योर फैन फॉलोइंग ओवर देयर एज वेल. हम देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे आपसे इस टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो हमारे स्टूडेंट्स में क्या होता है कि लास्ट टाइम पे दे गो फॉर वेरियस टाइप ऑफ मॉक्स, एंड जब वो उस मॉक में क्लियर नहीं कर पाते एंड दे आर लाइक नॉट able to go for maximum questions or even minimum one, so they feel very demotivated. So what would you suggest for that? ओके, देखो, जब मैंने अपना पहला मॉक दिया था ना, मेरे -28 आए थे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. बट सी, मॉक टेस्ट जो होते हैं वो हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है. रिमेंबर दिस थिंग, मॉक टेस्ट कैन नेवर एवर जज यू. दे वुड जस्ट प्रोवाइड यू द प्रैक्टिस. और वो प्रैक्टिस किस चीज़ की होगी कि आपको 3 hours एग्जाम के अंदर स्क्रीन के सामने बैठना है. मैम, यू मस्ट बी नोइंग कि स्क्रीन के सामने बैठने का जो 3 hours का टाइम होता है, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. सो मॉक टेस्ट का मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक आई डोंट थिंक कि वो समझ पाते हैं. मैंने खुद अपने चैनल पे इतनी बार बच्चों को बोला है कि मॉक टेस्ट दो, लेकिन दे आर लाइक नहीं मैम, अभी प्रेपरेशन नहीं हुई. मॉक टेस्ट हमें मेन स्क्रीन टाइम को टैकल करने में हेल्प करेंगे. एग्जाम के हॉल के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब इतनी एंजाइटी होती है, इतना प्रेशर होता है, और उसमें आप स्क्रीन के सामने बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. सो उस टाइम को हम प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व आउट कर सकते हैं कि हमने स्क्रीन के सामने, अच्छा हमें इतनी आदत है कि हम 3 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं. सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रैक्टिस होगी. और मॉक टेस्ट कैन नेवर जज यू फॉर योर फाइनल रिजल्ट. वो CSIR कर लेगा, आपको खुद को जज करना है उसके अंदर. दिस इज समथिंग स्टूडेंट, आई गेस आज तक बच्चों को जितना डाउट हुआ होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा. मैम, दे आर विशिंग यू, पंकज, नमन, चारू, नीरज, दे ऑल आर विशिंग यू अ वेरी गुड इवनिंग टू यू. राइट. एंड स्टूडेंट्स, आपने सुना मैम ने क्या कहा. दिस इज द अल्टीमेट आंसर टू योर क्वेरी. जो आप लोग बोलते हैं कि मॉक में आंसर नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहा है. सो लाइक काजल सेड कि मॉक इज, एंड आई वेरी मच एग्री टू यू मैम, बिकॉज मॉक इज
all about practicing and having your time in front of the screen. True. Right? It will never decide कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपको कितने मार्क्स हैं. तो स्टूडेंट्स अगर मॉक में नहीं आ रहा है तो प्लीज ये टेंशन आज से यही खत्म. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन एज वेल मैम. लेट्स सी. सो इट सेज मैम, मेरा मॉक टेस्ट का रिजल्ट देख के बोले घर वाले की कुछ तैयारी नहीं है तेरी. मैम, सच अ डिसहार्टनिंग स्टेटमेंट. नो, नेवर थिंक अबाउट दिस थिंग कि मॉक जो होता है ना, इट इज कम्प्लीटली अ प्रैक्टिस सेशन. वो आपको कभी भी आपके फाइनल एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा कि भाई इतने ही मार्क्स आएंगे. वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आप अभी इस स्टेज पे हो एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड अहेड इन दीज मैनी स्टेप्स. सो इवन इफ योर फैमिली इज सेइंग दैट वे, उन्हें आप समझाओ, चेंज देयर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट थिंग कि नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग वेल. और जो CSIR का मॉक होता है ना, वो आप कहीं से भी उस लेवल का नहीं ला सकते. जो CSIR के मेन एग्जामिनर्स होते हैं वो अलग लेवल का एग्जाम सेट करते हैं. सो मेक श्योर कि जो मॉक है आप उसको एग्जाम दो 3 आवर्स का, प्रिपेयर करो, एनालाइज करो कि वेयर यू आर लैगिंग. क्योंकि मैंने जब मॉक टेस्ट दिए, आई एनालाइज कि मेरी रिविजन के अंदर मेन दिक्कत आ रही थी कि यार पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन ना वो पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे. सो मॉक टेस्ट हमें उसमें हेल्प करते हैं. दे कैन नेवर जस्टिफाई द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर्स. आई गेस इससे इलेबोरेट आंसर तो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं हो सकता है. शी हैज poured her heart out and trust me ma'am, I would be really appreciating your answer. This is the best a student can ever have. Right students, am I right or wrong? Okay, one says ERRK. एक तो बच्चों के यूजर नेम मैम इतने अजीब होते हैं, you really feel like हम बात किससे कर रहे हैं. Alien. So my friend Vinay is too tensed about the test. Ma'am, something to say on that. Okay, you're too tense about the final examination. Yes, ma'am. I guess your preparation is going well. First of all the very best for your preparation. And ज़्यादा tension मत लो. It is absolutely normal to feel anxious. It is absolutely normal to feel like कि कैसा होगा exam. Just be very very confident और exam अच्छा ही होगा. सबका exam अच्छा होता है अगर अच्छे से preparation करते हैं तो. ग्रेट. सो आई गेस विनय ये बात सुन के थोड़ा बहुत तो यू नो चेयर अप होंगे. एंड आई गेस मैम की इतनी सारी बात सुन के आप सब चेयर अप होंगे, नॉट जस्ट विनय. सो मैम इज हियर टू एड्रेस योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस एज वेल. स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, सो यू हैव योर टाइम स्टूडेंट्स. प्लीज you can ask your questions and ma'am is all happy to answer out because she really feels that जहां आज वो है वहां पर आप सब भी जा पाए. So I guess students are very much correlating with you ma'am because एक point पे मैम भी स्टूडेंट रही हैं and she has gone through whatever you are going. Okay, please do talk in English. Well students, this is a bilingual but definitely ma'am 2 to 3 lines in English as well for the mortification. Sure. See, what I was saying was that no matter how much you have prepared, no matter how much you have done till now, be very very confident, be very very like enthusiastic about this examination. If you have put in 6 months, 7 months or maybe more than that in this examination, for sure you'll get the result because result comes out of hard work. अगर आपने बहुत अच्छे से hard work किया होगा, for sure you'll get the success and there is no looking back after that. So students, here is another answer I get in an English version, refined English version. So is there any other question that we do have? Yeah, we do have in last few days में क्या करें ma'am? So I guess ma'am has already answered that कि हमें last few days में कैसे चीजों को manage करना है. Like she said, बिल्कुल भी demotivate नहीं होना है, mock के scores को seriously consider नहीं करना है, and you need to keep on revising students. Always remember that is the key, I guess ma'am. Yeah, I can add on one more point. Please, to that, and that is like this is something I have done during my preparation, mainly during the last time, and that was जो आपकी एग्जाम शिफ्ट का टाइम है. लाइक अगर आपका एग्जाम शिफ्ट 9 to 12 है फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें नहीं पता, एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं, तो उस टाइम के ऊपर ट्राई टू हैव अ वेरी एक्टिव माइंड. 10 बजे सो के मत उठना प्लीज. 9 to 12 जैसे मैंने अपनी प्रेपरेशन टाइम पे आई मेड श्योर कि 2 टाइमिंग हो सकते हैं. इट कुड बी ईदर 9 to 12 या फिर 3 to 6. तो मैंने उन टाइम पे मॉक टेस्ट दिया ताकि हमारा माइंड उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहे. बिकॉज अगर आप एग्जाम के एक डे पहले तक 10 o'clock उठेंगे, और एग्जाम को मतलब ब्रेन को एक्टिव होने में इट टेक्स अबाउट 10 to 15 minutes. आप सोचो ना, एग्जाम में हमारे पास आधा घंटा रह गया,
सो मेक श्योर कि 9 to 12 का जो विंडो है दैट शुड बी वेरी वेरी एक्टिव फॉर योर सेल्फ, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सको. So this is something I have learned during that time as Ma'am, well. it's something very great and in a crisp way you have represented. Yeah. Students, तो जल्दी से सो के उठना है, सबके alarm clock has to be good, like ma'am said. And मुझे तो ये लगता है मैम, बहुत सारे बच्चों को तो डर के मारे नींद भी नहीं आती. फोबिया होता है मैम. I guess you all will agree to that. बहुत सारे बच्चों को, मैम मुझे भी नहीं आई थी जब मेरा एग्जाम था, रात भर नींद नहीं आई थी. And but I feel owing to that जो हमारी एक्टिविटी होती है वो शायद थोड़ी स्लो डाउन होती है और वो हैम्पर भी करता है. ओके, सो वी हैव अ कमेंट ओवर हियर. रिकॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, अब क्या करें? एंड एमसीक्यू लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की. Okay, so see, this is something we all must have faced. Ecology and evolution बहुत scoring units हैं. They are very very easy and very scoring as well. So उसका मेन तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर मे बी लैंग्वेज सिंपल हो, लेकिन फॉर श्योर एग्जाम के अंदर लैंग्वेज अलग होती है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको म्यूचुअलिज्म का क्वेश्चन आया है, सो हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि इट इज इक्वली बेनिफिटेड टू बोथ, लेकिन जब मेरा एग्जाम था द क्वेश्चन वाज इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो एक क्वाड्रेंट फॉर्मेट में था. सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज वन थिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज अनदर थिंग. वो हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट रिकॉलिंग का बेस्ट तरीका क्या होता है? लाइक आपने अगर कोई स्टडी किया है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सेल सिग्नलिंग, सो सेल सिग्नलिंग को 4 बार रिवाइज करो अच्छे से, मतलब नोट्स खोल के. 5th टाइम क्या करो? जस्ट क्लोज योर नोटबुक्स, white page, whatever you want to take, just take and jot down the points जो आपको याद आ रहे हैं. So that is what recalling is. Revising is कि notes दोबारा पढ़ने हैं. Recalling is mind को active करना है कि कितना याद हुआ तुझे. So that is very important. The difference between two beautiful hours, like ma'am said, recalling and revision. And I feel ma'am शायद आजकल बच्चे इन दोनों में एक ये जो thin line of difference आपने अभी enlighten करा, they don't actually understand this basic concept. उन्हें लगता है बुक खोल के रिवाइज किया तो that is recalling. No, right? that is not recalling. Recalling is कि आपने, और उसमें भी आप एक और पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो. मैंने भी सेम किया था. लाइक मैंने अगर एक वीक पूरा सेल साइकिल कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीक उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, 2 दिन रिवीजन किया, 3rd डे मॉर्निंग में विदाउट रीडिंग एनीथिंग, उसके बाद यू स्टार्ट रिकॉलिंग. क्योंकि आधे घंटे पहले का तो हम भूल सकते, मतलब नहीं भूलेंगे, लेकिन एक दिन पहले का कितना याद है वो रिकॉलिंग हमें नेक्स्ट डे पता चलेगी. सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट. सो okay, so there are lots of appreciation for you ma'am, and they are thanking you like anything. And I guess we have one more question, I guess. Okay, so ma'am, please would you like to address the other question? Okay, that's really so sweet. Ma'am have already answered too many questions, students, right? But anything, anyone? Okay, so ma'am, you are just perfect. Yes, she is, no doubt, and she can correlate to your problems directly. Okay. So really ma'am, because if whatever you are saying is coming out of heart and out of natural conditions and situations, so what I feel students शायद इसको सबसे अच्छा connect कर पा रहे हैं. Because मैं 2 साल पहले I was in the same state. So मेरा जो चैनल है मैं उसके ऊपर भी सेम चीज़ ही ट्राई करती हूँ कि जो मेन इशू है हम उसको हाईलाइट करें. पढ़ाई सब जने करते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि उसको क्वालिफाई कैसे करना है. एंड दैट इज समथिंग विच इज द ब्रेक पॉइंट. कि ठीक है, अगर मैंने 100 दिन पढ़ाई करी, किसी और ने 200 दिन पढ़ाई करी, वो बंदा क्वालिफाई तब करेगा जब उसने रिविजन किया हो, रिकॉलिंग किया हो. मैं एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लेके चलती हूँ, एंड दैट इज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम 1000 टॉपिक्स कंप्लीट करें. 1000 टॉपिक्स को हम 100 दिन रिवाइज नहीं कर सकते. 100 टॉपिक्स करो, अच्छे से कंप्लीट करो, एंड वो एग्जाम के अंदर दो, और एग्जाम में 100 टॉपिक में आराम से क्वालिफाई होता है. That is again very very important. Very important, like what she said, कि you cannot really master each and everything in science, like ma'am is saying. But आप जो भी concept पढ़ रहे उसको thoroughly पढ़िए, right? And okay, so ma'am, they have a very personal question. I hope you won't mind, and they are asking you about your family support. Okay, my family was very very supportive. I can say like I'm blessed with best family. They have been
been through in my journey from the very first day. My father is very supportive. I have my sister-in-law, my mother, my brother. They all are very very supportive. अगर सुबह 6 बजे उठना है, so one of them make sure कि वो साथ में उठे, कि उसको हम सुबह will give her tea. So that is something कि in the preparation, it is not just your preparation. The surrounding also matters, because lockdown का time था, everyone was frustrated, but my family made sure कि अगर she is preparing, we have to be with her. So they were very very supportive, and I am truly blessed. Not just my family, my friends as well. I have few very close friends. They were very very supportive during the preparation, and आज तक भी they are very good friends of mine. मतलब it is not कि what wherever I am या फिर वो कहाँ पर हो. It is just कि it is completely out of pure love, which you can say कि if she is enthusiastic about something, we have to support her. So I was blessed in that thing. So I guess Apurva, it has really answered your question, and I feel, ma'am, giving the CSIR exam is like marrying CSIR NET exam. You can say that. Where an entire family support is required. Yeah. Obviously, because your brain was all occupied with the work. Yeah. So, and what relaxation you had was from your family side, a big and support. from my friends as well. And Apurva is one of my closest friends. Oh, great, great. So Deepak says, ma'am, CSIR NET LS के लिए कितने marks लाने होंगे? See, it completely depends upon कि हमारा कट ऑफ कितना जाता है. अगर हम पुराना वाला स्ट्रैटेजी को देखें या फिर पुराने हम कट ऑफ्स को देखें, सो वो 100 to 105 जाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50%. सो अगर आप जो सिलेबस है, देखो हमारा जो सिलेबस का कट ऑफ जाता है वो 60% जाता है एट मैक्स. तो 100% क्यों सिलेबस करना है? 60% सिलेबस करो. बी वेरी स्मार्ट. मतलब अगर आपको हार्ड वर्क भी करना है, पुट इन योर स्मार्ट वर्क एज वेल, विच आई थिंक आई डिड. कि मैंने हार्ड वर्क तो किया, लेकिन इट वॉज अकम्पनीड विथ स्मार्ट वर्क. कि काम करो लेकिन वहां तक करो जहां पे हमें रिजल्ट मिले. ऐसा नहीं कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 20 दिन तक वही पढ़ रहे हैं. एग्जाम में आना ही नहीं है वो सब कुछ. जो आएगा उसको अच्छे से प्रिपेयर करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that brings me to a question, students, from your side, since I'm representing my students over here. Ma'am, बहुत सारे बच्चों को एक फोबिया होता है, like we take classes over there, so we encounter this कि सिलेबस का एक एक वर्ड पढ़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, हर चीज डेप्थ में हमें जानी है. So is it really worth doing so? सी, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैंने पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया था. वो होगा भी नहीं कंप्लीट. टू बी वेरी वेरी लाइक रियलिस्टिक इन दिस, पूरा सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता. अब अगर मुझे इकोलॉजी और एवोल्यूशन आता है, हो सकता है मुझे जेनेटिक्स समझ में ना आए, और एग्जाम में हमें 130 जो मार्क्स लेकर आने हैं. मतलब मैंने ये एस किया था कि मैं 130 तक टारगेट करूंगी. हमें 13 यूनिट्स का जो मेन स्कोप दिया गया है वो इसीलिए कि अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप फिजियोलॉजी मत करो, और अगर आप फिजियोलॉजी से हो तो आप जूलॉजी मत करो. सो आपके पास चॉइस सीएसआईआर ने दी है, हमने नहीं बनानी है चॉइस. तो जो चॉइस मिली है उसको यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पूरा सिलेबस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. आई कैन से इट मेनी टाइम्स, और मैं बार बार मतलब जिन स्टूडेंट से मैं इनकाउंटर करती हूँ अपने चैनल पे या किसी भी कोर्स में, आई से द सेम थिंग कि पूरा सिलेबस करने की नीड नहीं है. एग्जाम तब भी क्वालिफाई होगा. यार 200 में 200 किसको लेके आने हैं? किसी को नहीं लेके आने. सो क्यों करने सारा के सारा प्रिपेयर? आई गेस मैम के दिस आंसर पे ही डिजर्व्स अ क्लैप. मैम, बच्चे तो आपको बहुत प्यार कर रहे होंगे. दे आर रियली दिस थिंग कि मैम क्या छोड़ सकते हैं, बट यू सी दे हैव दिस फोबिया इनसाइड कि नहीं, कुछ छोड़ दिया तो बस इसी वजह से रह जाएंगे, ये यूनिट नहीं हुई है तो इसलिए मार्क्स कम आएंगे. ऐसा नहीं होते बच्चे. देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर द पूल टू योर कंप्लीट सिलेबस. मैंने अपना सिलेबस खुद प्रिपेयर किया था, सीएसआईआर ने दे दिया. अब वो तो सीएसआईआर की मेहनत थी ना, हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपना सिलेबस प्रिपेयर करेंगे, एंड दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. क्वेश्चंस एनालाइज करो. जैसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड, मतलब द क्लासमेट्स, दे वर लाइक कि बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आ रही. मैंने बोला कंप्लीट क्यों करनी है? 6 टॉपिक्स बार बार कंप्लीट करो. लाइक प्रोटीन्स में से हमेशा क्वेश्चन आता है, रामाचंद्रन प्लॉट से हमेशा आता है, न्यूक्लिक एसिड से आता है. सो डू दोस क्वेश्चंस. अगर आपको स्ट्रक्चर, मुझे नहीं समझ में आते स्ट्रक्चर्स, टू बी ऑनेस्ट, मुझे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बायोकेमिस्ट्री में वो कभी समझ नहीं आते, तो मैंने वो स्किप आउट किया. एंड एग्जाम में वो 10 साल में 3 बार आए हैं. ऑलवेज हैव दिस थिंग कि आप अगर एक टॉपिक कर रहे हो, उस टॉपिक में अगर आपके 60 डेज लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो उन 60 डेज का आपको बेनिफिट कितना है?
जैसे रामाचंद्रन प्लॉट को मैं 3 दिन में कवर कर सकती हूँ, लेकिन उसका जो बेनिफिट है दैट इज 20 मार्क्स, आई वुड डू दैट। लेकिन अगर कोई टॉपिक मुझे 1 महीने में कंप्लीट करना है और बेनिफिट 2 मार्क्स का है, आई वुड स्किप दैट, क्योंकि वो टाइम सेव करेगा, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग उसको ही स्मार्ट वर्क बोलते हैं। I guess students, ma'am, already clapping for you in the audience. Students, a big clap again, because ma'am is saying something which is no less than a diamond and a pearl, as especially जब exam 17th के लिए due है. So ma'am, 2 more crisp question from my side. Sure. Students में ये एक जो आप suggestion होता है, and for the future aspirants as well, कितनी units exactly करनी चाहिए? Because we have a vast syllabus, 13 units. So what would you suggest? कितनी units are like sufficient to fall in the line? See, number of units को कभी भी टारगेट मत बनाओ, like 7 units 8 यूनिट को टारगेट मत बनाओ। Why am I saying this? If you all remember the part C, जो हमारा सिलेबस का पार्ट C होता है, उसमें 75 में से you have to do 25 questions, right? अब उन 25 क्वेश्चन की चॉइस इंक्रीज करने के लिए you have to increase the topics you do, not the unit. Are you getting? like स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उन 25 क्वेश्चन को ढूंढने का तरीका इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ढूंढने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, हर बार एंजाइम्स में से क्वेश्चन आता है तो मैं ये कंप्लीट करूंगा, टेक्निक मुझे नहीं समझ में आ रही तो मत करो उसको। सो अपने चॉइस ऑफ टॉपिक्स पे ध्यान दो, ना कि चॉइस ऑफ यूनिट्स के ऊपर, विच इज आई पर्सनली डिड कि आई वॉज नॉट रनिंग आफ्टर कि मुझे इतनी यूनिट्स कवर करनी है, आई वॉज रनिंग आफ्टर कि मुझे ये टॉपिक्स आने चाहिए। जैसे मैं मतलब बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया एग्जामिनेशन के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि जो हार्ट का टॉपिक है एनिमल फिजियोलॉजी से, उससे हर साल क्वेश्चन आता है। मुझे लगा कि पूरी यूनिट तो समझ नहीं आने वाली, सिर्फ हार्ट कंप्लीट करती हूँ। मैंने वो कंप्लीट किया, एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए थे उससे। सो पॉइंट इज कि टॉपिक्स पे ध्यान दो, ना कि यूनिट्स के ऊपर, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंप्लीट प्रेपरेशन, आई से। So students, I feel you completely agree with her, which ma'am has said are the golden words, no less than that, कि हमें units नहीं जानी है, हमें topic like ma'am said, और किस topic से हमें कितने questions we can gain out of, that is more important. So ma'am, last question of the evening. Students में आजकल एक चल रहा है admit card आ गया है, अभी किसी का इवनिंग शिफ्ट आया, किसी का मॉर्निंग शिफ्ट आया, सो दे हैव दिस वेरी थिंग गोइंग ऑन, एक शिफ्ट का पेपर इजी आता है, एक शिफ्ट का पेपर हार्ड आता है। इज देयर एनीथिंग एज सच? नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। कोई भी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट या इजी नहीं आता। टॉपर्स ऐसा नहीं होता कि मॉर्निंग शिफ्ट से बनते हैं, इवनिंग शिफ्ट से। रिजल्ट तो क्यूमुलेटिव आता है ना, वी कैन नॉट डिफाइन। देखो, अगर आपको एक्सक्यूजेस देने होंगे ना, तो आप एक्सक्यूज किसी भी तरीके से दे सकते हो कि मेरा पंखा नहीं चल रहा था रूम का, एक्सक्यूजेस भरे पड़े हैं, लेकिन make sure कि whatever is your shift, you have to excel in that shift. You cannot change your shift, you cannot change the set of your paper, you cannot change the external factors. What you can change is कि आप प्रेपरेशन कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। क्योंकि जब मेरा एग्जाम था नवंबर में, आई वॉज ऑल्सो वेरी मच लाइक इन डिलेमा कि मॉर्निंग में आएगा, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे सेम फेज में थी। देन वन ऑफ माई फ्रेंड लाइक हेल्प्ड मी आउट इन दिस कि इट डज नॉट मैटर कि आपका मॉर्निंग में एग्जाम है या इवनिंग में एग्जाम है, इट इज कम्प्लीटली इन योर माइंड। क्योंकि एक्सक्यूज देना है ना, तो एक्सक्यूज आप ये भी दोगे कि मुझे पानी नहीं मिला था, और नहीं देना होगा चाहे आपके रूम में एसी भी ना चले, देन ऑल्सो यूल बी एबल टू क्वालिफाई। राइट मैम, एंड इवन आई फील के अगर एक प्री डिफाइंड ये नोशन दिमाग में बैठ जाता है कि मेरा इस शिफ्ट में यार मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, सो दैट ऑल्सो रियली इफेक्ट्स योर वर्क परफॉर्मेंस, राइट? सो आई स्टूडेंट्स, आई फील a lot of your questions have been answered over here. Okay, we have last question of the evening, ma'am. Sure. How to revise the entire syllabus? So I guess ma'am have already answered that कि पूरा syllabus कोई भी नहीं कर सकता है। important topics पे जाइए, important units पे नहीं जाइए, right? Thank you so much Kajal for joining us. And as students, I feel के अमृत होता है अभी बच्चों के लिए, ये इंटरव्यू as अमृत होगा। I hope this interview might help at least one student, because I have always like thought of this thing कि अगर मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई मेरा होगा, आई वुड मेक माई ओन चैनल, आई वुड मेक अ माई ओन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर मैं मतलब एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूं कि बच्चों को कहीं और ना जाना पड़े। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कि उन्हें फुल पैकेज मिले, मोटिवेशन भी मिले, कंटेंट भी मिले,
और साथ साथ जो मुझे डिलीवर करना है वो बच्चों तक पहुंचे, एंड वो तभी होगा जब हम एक लेमन लैंग्वेज में समझाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल. फर्स्ट थिंग, हैव योर ओन स्ट्रैटेजी. डू नॉट फॉलो एनीवन एल्स कि अच्छा उसने ऐसे किया था तो मैं ऐसे करूंगा. नहीं होगा, उनका पाथ अलग था. everyone have to make their own paths, which is I have also learned in my own journey of this examination. So make sure you prepare well, you make your own strategy and be confident in that. And one more I would like to add, and that is जो आपका कंटेंट है, whatever you are studying, make sure आप उसमें डाइवर्ज ना करो. मतलब आपका कोई फ्रेंड कहीं और से नोट्स ले आया, कोई और फ्रेंड कहीं और से नोट्स ले आया, लेकिन मतलब अपने ही पॉइंट पे स्टिक रहो कि नहीं, मैंने ये पढ़ा है, यहीं से ही करना है मुझे, क्योंकि रिपीटेड रिवीजन हमारा सिर्फ उसी सिलेबस में से होगा. जब ऐसा होता है जैसे अभी 5 से 6 दिन बचे हैं ना, तो बच्चे क्या सोचेंगे, यार ये नहीं पढ़ा, मैं ये भी सारा पढ़ लेता हूँ. मत पढ़ो, यू वुड नॉट रिमेंबर इट इन द एग्जाम. जो आपने पहले पढ़ लिया ना, सिर्फ वही याद रहने वाला है. सो मेक श्योर कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो उस अपनी स्ट्रैटेजी में. मैंने खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड आई मेड श्योर कि फर्स्ट डे से एंड लास्ट डे तक मैं सिर्फ उसके ऊपर स्टिक रहा हूँ. नो मैटर कोई और क्या बोल रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्वालिफाई होता है क्वालिफाई. क्योंकि अगर एक बार में 200 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग डिफरेंट, दे आर स्टडिंग द सेम थिंग जो आप स्टडी कर रहे हो. व्हाट इज द डिफरेंस दैट दे आर मेकिंग, एंड दैट इज देयर स्मार्ट वर्क, which is again very very important for you to understand. Absolutely. And ma'am, ये जो एक एजेंडा होता है कि एक ही टॉपिक को 4 अलग बुक से पढ़ना, do you really favor that? No, I would not favor that. देखो, सेल साइकिल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं हमेशा एग्जाम्पल्स के थ्रू बोलती हूँ. जैसे सेल साइकिल है, उसकी एक डेफिनेशन है कि वो प्लांट सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है. अब वो हर बुक में सेम चीज लिखी है, तो क्यों मेहनत करनी है यार. एक बार पढ़ाई करो, उसको रिवाइज करो. क्यों तुम्हें 20 दिन तक सेम टॉपिक लेके बैठना है. सो मेक श्योर आप एक टॉपिक एक जगह से पढ़ो, क्योंकि सेल साइकिल का जो कंप्लीट टॉपिक है, ये जस्ट एग्जांपल है, मैं सिर्फ इस टॉपिक का नहीं, मैं हर टॉपिक का बोल रही हूँ कि एक टॉपिक है, उसको अच्छे से एक बुक से करो, क्योंकि हर बुक ने सेम चीज लिखी होगी, मैकेनिज्म तो सेम है ना. पॉइंट इज कि लिखने का तरीका अलग होगा. सो मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट समझो, ना कि आप बल्क ऑफ बुक्स में जाओ. So again, that is something you need to understand during this preparation. ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ आपको समझनी नहीं है, बट आई फील मैम इन्हें अपनी वर्क कल्चर और हैबिट में लानी होंगी. दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू. सो मैम, वन लास्ट क्वेश्चन, आई एम सिंपली एडिंग द लिस्ट, बट देन ऑब्वियसली वन लास्ट. जब आपने बहुत सारे I would be saying platforms and आपने बहुत सारे portals को serve करा, did you find something different in Byju's exam prep? Something for sure that was making it stand apart from all the others? For sure. Like I can like say this with very much, you can see I am like very very transparent in everything. I am just speaking what मेरे mind में जो अभी आ रहा है, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ. मैंने Byju's का ये प्लस पॉइंट देखा है that they are very student centered. मतलब इट इज नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ कि नहीं भाई हमें मार्केटिंग करनी है. नो, दे आर स्टूडेंट सेंटर्ड. व्हाट द स्टूडेंट इज एक्चुअली डिमांडिंग और व्हाट इज द एक्चुअल नीड ऑफ द स्टूडेंट, you can find it here for sure. Great. Thank you so much, Kajal, for joining us, giving your valuable time. And students, I guess one more applaud of love for ma'am, right? She has given such a important, tips and tips for you to take care of. Thank you so much, Kajal, for joining. Thank you so much, everyone for like being a part of this, and thank you ma'am for like helping me out to come here and share my ideas. Definitely ma'am, it was an exciting session students, isn't it? So there is some important information as well students that I'll be sharing with you over here on the screen. Students, ये exam analysis का pattern है, please इसे note down कर लीजिए. Upcoming session 16 September for mathematical science, 17th for life sciences shift 1 and 2, and for 18th it will be chemical sciences, right? So please इसे जरूर note कर लीजिए, miss नहीं करिएगा. Also students, we have a special 5-day series for you which will be taken care by Ramika Singla 17th September onwards. So do not miss that and join us for the same. Chemical sciences के लिए भी हमारे पास सिमेश चौधरी हैं to have the 5-day series. So thank you so much ma'am, it was lovely having you over here. Once again, thank you so much, and thank you so much students for joining. Best of luck all of you for your sessions. Bye bye.